Hello dear student, I welcome you all in the subject concrete technology and the subject code is 1615305. Today we are going to see unit number 3, that is properties of concrete, and in properties of concrete this is lecture number 6, that is water cement ratio. My name is Daniel Swami. I am lecturer of civil department, GEMS Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. Let us see the content of this lecture. In this lecture, we will see about water cement ratio, role of water cement ratio, effect of too much of water in concrete, Abraham's water cement law. Let us discuss this topic in detail. First of all, we will see water cement ratio. Water cement ratio means the ratio between weight of water to the weight of cement used in a concrete mix. जो इसका मतलब जो होता है, जो पानी का वेट और मतलब जो हम पानी यूज़ करते हैं और सीमेंट यूज़ करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, कितना अमाउंट पे वो यूज़ करते हैं, उसी को हम वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं. नॉर्मली वाटर सीमेंट रेशियो falls under 0.4 to 0.6 as per IS code 10262 2009 for a nominal mix M10, M15, M25 till M25. That means that if we are taking M10, M15, M20, M25 around these grades, we should use water cement ratio as 0.4 to 0.6 as per IS code. We all know that the water cement ratio will be directly affecting the strength of concrete, either increasing in strength or if we use in correct proportion और it decreasing. अगर हम सही प्रोपोर्शन में अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करते हैं तो जो रेशियो हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ रहेगा वो बढ़ जाएगा. लेकिन अगर हम करेक्ट प्रोपोर्शन में वाटर सीमेंट रेशियो को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, रेशियो को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारा स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा. द quantity of water is used expressed in liter per bag of cement. If water required for one bag of cement is 30 liter, the water cement ratio is equal to 30/50 is equal to 0.6. अगर हम मानते हैं कि हमको जो मतलब हम पानी मिक्स करेंगे सीमेंट के साथ, अगर मान लेते हैं कि एक बोरा सीमेंट में अगर 30 लीटर पानी लगता है तो उसका रेशियो हम लेंगे 30/50 करेंगे तो 0.6 आएगा. जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.6 हो जाएगा. वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी such that it should import a reasonable degree of workability to a concrete. Excess water affect the durability and the strength of concrete. It means that if we use the water cement ratio in a proper form, if we use अगर हम प्रॉपर फॉर्म पे यूज़ करते हैं, प्रॉपर प्रोपोर्शन पे यूज़ करते हैं, तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा और उसमें मतलब ड्यूरेबिलिटी बढ़ा हुआ रहेगा, स्ट्रेंथ कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. लेकिन इफ़ वी आर यूजिंग लेस देन दिस or if we are disturbing the water cement ratio proportion, then the durability will decrease as well as strength will decrease. Next is water cement. We will see how the ratio will be done. Here see, lesser water cement ratio makes the concrete unworkable, while the excess water cement ratio is liable to segregation. Keeping the quality and the quantity of the ingredient the same, it is the water cement ratio that determines the strength of concrete. Which means that अगर वाटर सीमेंट रेशियो का अगर हम जो प्रोपोर्शन है अगर करेक्ट प्रोपोर्शन में रखते हैं तो उसका वर्केबिलिटी सही रहेगा. अगर वही अगर कम रखेंगे तो उसका वर्केबिलिटी मतलब अच्छा नहीं रहेगा, उसमें सेग्रेशन होगा. यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब इमेज शोज दैट insufficient compaction of concrete. This means that the water cement ratio is not in proper form. You can see the water cement ratio between the compressive strength of concrete. वाइब्रेटर चलाने के बाद भी यहाँ पे insufficient है, हैंड कॉम्पैक्शन के बाद भी insufficient है,
फुल्ली कॉम्पैक्टेड के बाद अब ये बता रहे हैं कि इससे ये पता चलता है कि जिस तरह से अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर फॉर्म में रहेगा तो वाइब्रेशन, हैंड कॉम्पैक्शन से और फुल कॉम्पैक्शन कंक्रीट करेंगे तो उसमें जो इनसफिशिएंट कॉम्पैक्टेड कंक्रीट नहीं रहेगा, जो उसमें एयर बबल्स जो फॉर्म होता है वो नहीं रहेगा अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर प्रॉपर फॉर्म में है। और हम लोग जिस तरह से अभी बताया कि उसका मतलब 0.4 से 0.6 तक उसका वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब नॉमिनल वैल्यू रहता है कंक्रीट मिक्स में M25 तक। नेक्स्ट वी विल सी रोल ऑफ वाटर इन कंक्रीट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर, पानी का क्या रोल है कंक्रीट के अंदर में। कंक्रीट इज़ ए माइक्रो कंटेंट, इट कंटेन्स माइक्रो इंग्रेडिएंट्स सच एज सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। ये चार जो है वो मतलब कंक्रीट के अंदर में रहता है, ठीक है। एक कंक्रीट बनाने के लिए हमको सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, फाइन एग्रीगेट चाहिए, कोर्स एग्रीगेट चाहिए। कोर्स एग्रीगेट जो गिट्टी है, ग्रेवल है, फाइन एग्रीगेट सैंड। In order to acquire a high strength concrete which withstand up to our desired compressive strength, we need correct proportion of admixture to combine this mixture। जो हम combine this materials, जो ये मटेरियल्स को हमको कंबाइन करने के लिए हमको एक करेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्सचर चाहिए जो हाई स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद हियर कम्स द वाटर विच विल इनिशिएट द केमिकल प्रोसेस बाय एडिंग 23 to 25% ऑफ सीमेंट वॉल्यूम। जो है पानी है वो केमिकल रिएक्शन को मतलब प्रोसेस करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा, तभी मतलब वो जो मतलब कंक्रीट बनेगा उसमें वो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट और पानी ये सब मिलके एक वन फॉर्म ऑफ मिक्सचर प्रोड्यूस करेगा, उसको हम कंक्रीट कहेंगे। The initiating the chemical process and making 15% of water cement paste, also known as gel, to be fill the voids in a concrete। जो पानी है और सीमेंट जो मिक्स होके ये एक पेस्ट फॉर्म करता है, वो किसके लिए होता है, वो मतलब जो वॉइड्स बीच में रहता है सैंड का, ग्रेवल का बीच में जो वॉइड्स रहता है, जो गैप रहता है, वो वॉइड्स को भरने के लिए ये पानी और सीमेंट रेशियो जो मिक्स होकर पेस्ट बनता है उसका काम में आता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टू मच वाटर इन ए कॉन्क्रीट। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे कॉन्क्रीट के अंदर तो उसका मतलब क्या इफेक्ट होगा वो उसके बारे में जानेंगे। As stated above, we need 23% of water to initiate the chemical processing of cement। मीन्स जो हमको केमिकल प्रोसेसिंग के लिए हमको सिर्फ 23% पानी चाहिए, लेकिन अगर इससे अधिकतर अगर डालेंगे तो उसका भी डिफरेंट इफेक्ट होगा, उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा, मतलब उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगा। एडिंग मोर वाटर देन दिस अलाउबल वाटर सीमेंट रेशियो लिमिट विल एक्चुअली अफेक्ट द स्ट्रेंथ। जिस तरह से आपको हम बताएं कि जो सबसे पहले क्या अफेक्ट करेगा वो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा और उसका जो लाइफ टाइम का स्ट्रक्चर का जो लाइफ टाइम होगा उस पे अफेक्ट करेगा। तो ये अगर हम अधिकतर पानी मिक्स करते हैं तो वो इसका स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। इफ़ वी कीप ऑन एडिंग वाटर टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी देन द कॉन्क्रीट हैज़ लॉट ऑफ फ्लूइड मटेरियल विच द एग्रीगेट विल सेटल डाउन। वंस द वाटर एवापोरेट it leaves a lot of voids in a concrete which will affect the concrete strength। तो क्या होगा कि अगर हम एक्सेस पानी डालते हैं कंक्रीट में, थोड़ा थोड़ा अगर डाल देते हैं, ज़्यादा पानी हो जाता है तो कंक्रीट में क्या होता है कि मतलब कंक्रीट तो बैठ जाएगा, लेकिन वो एवोपरेशन के अनुसार से जब पानी एवोपरेट हो जाएगा तो आपका जो कंक्रीट में बहुत सा वॉइड्स, छोटा मतलब छोटा छेद रहेगा, उसके कारण मतलब ये स्ट्रेंथ का जो भी स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ नॉर्मल आना चाहिए, जितना नॉर्मल आना चाहिए उतना वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। नेक्स्ट वी विल सी, बट इफ वी फॉलो द guidelines in order to maintain the strength of the concrete, then it will affect the concrete workability and make us hard to handle and place them। अगर हम गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, अगर उसके अनुसार से चलते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ
और मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ जो है इधर से उधर मतलब होगा और उसको हैंडल करने में भी दिक्कत होगा. दैट्स वाई वी आर यूजिंग प्लससाइजर, सुपर प्लससाइजर, विच विल इंक्रीज द वर्केबिलिटी विदाउट अफेक्टिंग द वाटर सीमेंट रेशियो. हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लससाइजर और सुपर प्लससाइजर जो यूज़ करते हैं वो वर्केबिलिटी को बढ़ाता है और वो वाटर सीमेंट रेशियो को अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, जो वर्केबिलिटी को बढ़ा के हमको कंक्रीट को प्लेस करने के लिए आसान पड़ता है और उससे हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो अच्छा स्ट्रेंथ गेन करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर विल बी गुड. सो वी आर यूजिंग प्लससाइजर एंड सुपर प्लससाइजर. Next we will see how to calculate the water cement ratio. It is selected for a various workability test based on the structural member, concrete strength, transportation, selection of aggregation etc. जो वाटर सीमेंट रेशियो जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको जानना है कैसी कंक्रीट का स्ट्रेंथ, किस तरह से उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं कौन सा एग्रीगेट को, उसके अनुसार से हम वाटर सीमेंट रेशियो को टेस्ट करते हैं और ये वर्केबिलिटी टेस्ट में होता है. एज साइट लेवल वी कैन मेक यूज़ ऑफ बिलो कैलकुलेशन फॉर नॉमिनल मिक्स. जो हम लोग नॉमिनल मिक्स आपको आगे भी बताएं, नॉमिनल मिक्स 0.4 से 0.6 तक M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग यूज़ कर सकते हैं. उसके अनुसार से अगर हम चलेंगे तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो नॉर्मल रहेगा, प्रॉपर रहेगा. इट इज़ गाइडेड टू मेक सो मेनी ऑफ योर ओन जजमेंट. क्या होता है, साइट पे अपना जजमेंट के अनुसार से आप पानी को देख के डलवाते हो कि हाँ इतना पानी डालिए, आपका कंक्रीट मतलब वो जो लटपट होता है, एक मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर अच्छा है कंक्रीट का, तो आप उससे आप देख सकते हो कि वो कंक्रीट का वर्केबिलिटी किस तरह का है. As you can see this table, that minimum cement contain maximum water cement ratio, minimum grade of concrete at a different exposure with a normal weight of aggregate of 20 mm, nominal maximum maximum size. As you can see, as I have told you about this table, that a different exposure condition and there will be the water cement ratio will be different. So in mild 0.6, you moderate 0.6 and severe 0.5 and very severe 0.4 and extreme 0.4. the maximum free water cement ratio जो है वो 0.4 से 0.6 के अंदर में अगर हम लेते हैं तो वो हमारा मतलब M15 से M25 ग्रेड के अंदर वो काम करता है, चाहे वो कैसा भी कंडीशन में हो. नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट वाटर सीमेंट रेशियो फॉर ए कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट के लिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. द वाटर टू सीमेंट रेशियो for a mean strength of concrete is determined from the above figure. For the strength of concrete whereas water to cement ratio for a different value of 28 days compressive strength of cement or accelerated strength of a reference concrete. That means that जो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो मीन स्ट्रेंथ किसके लिए, कंक्रीट का स्ट्रेंथ के लिए, और वही डिटरमाइन करता है कि मतलब 28 दिन के बाद अगर हम चेक करते हैं तो उसका अगर स्ट्रेंथ अगर M25 लिए हैं तो उसका मतलब उसका अनुसार से उसका अगर हम ग्रेड 33 यूज़ किए हैं तो हमको 33 मतलब स्ट्रेंथ चाहिए, ग्रेड 43 यूज़ किए तो हमको 43 चाहिए. उसके अनुसार से अगर मतलब स्ट्रेंथ उसके अनुसार निकल जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर है. इफ़ वी आर नॉट गेटिंग अ स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द ग्रेड then the water cement ratio will be have got affected. In the absence of both 28 days compressive strength of cement and the accelerated strength of a reference concrete, the mean curve for strength whereas water to cement ratio as shown in figure can be used. जो
वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब जो दिखाया गया है कि मतलब आप 0.6 से 0.4 तक आप ले सकते हो, कोई भी M15 से M25 ग्रेड के अंदर तक जो कंक्रीट मिक्स है उसके अंदर ले सकते हो, वो कोई सा भी टेम्परेचर में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वी विल सी it is checked against the specified maximum water to cement ratio for the durability requirement. If the computed value is greater than the maximum specified value, then the maximum specified value is adopted. जो क्या है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर प्रॉपर रहेगा तो उसका ड्यूरेबिलिटी भी प्रॉपर रहेगा, और जितना हम वाटर सीमेंट रेशियो अगर मान लीजिए हम अपने अनुसार से अगर एक बोरा सीमेंट में 50 किलो का सीमेंट का बैग में 50 kgs ऑफ सीमेंट, इफ़ आई एम यूजिंग अराउंड 30 liters and that the water cement ratio is proper, then we can go for 30 liters for different mixtures. For determining the water quantity for concrete first, we need टू कैलकुलेट द सीमेंट क्वांटिटी फॉर कॉन्क्रीट मिक्स। हमको अगर जानना है वाटर क्वांटिटी कितना लग रहा है तो हमको पहले ये जानना है कि हम सीमेंट कितना वो कॉन्क्रीट के अंदर में मिक्स कर रहे हैं। फॉर ए इंटेंस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज़ 50 kgs फॉर ए कॉन्क्रीट मिक्स। जिस तरह से अगर मान लेते हैं कि अगर हमको कैलकुलेट करना है वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, तो अगर हम जान रहे हैं कि 50 किलो हम सीमेंट लिए हैं, ठीक है, और वाटर अगर मान लेते हैं कि हम 50 किलो लेते हैं, तो अगर 50/50 करेंगे तो हमको 0 मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर वही अगर उसका हम 45 kgs लेते हैं, हम इसका वाटर सीमेंट रेशियो हमारा, हमको क्वांटिटी ऑफ वाटर जानने के लिए क्या करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो इनटू क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन केजी। तो हमको वाटर सीमेंट रेशियो हम लिए हैं 0.45, हमारा सीमेंट का केजी कितना है 50 किलो, तो हम 0.45 इंटू 50 करेंगे तो हमको पता चलेगा कितना आएगा। तो अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आया 22.5 liters. That means that water what we are using is 22.5 liters of water we are using in water cement ratio. So according to this we can get a proper idea to calculate the water cement ratio in a concrete. Next is Abraham water cement law. It is very important, that is let us see what is Abraham water cement law. More importance to a concrete properties was attached after the First World War, and more stress was given for the development of cheap construction material. जो अब्राहम्स वाटर सीमेंट लॉ जो है उसमें क्या दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट यही किया गया था, जो कंक्रीट का प्रॉपर्टीज़ है उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से ही मतलब जो कंक्रीट का प्रॉपर्टीज़ है उसमें मतलब बहुत दिमाग लगाया जा रहा है कि वो कम कॉस्ट में मतलब कंक्रीट मटेरियल मिल जाए और उसका जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पाया जाए। कीपिंग दिस एम इन अ व्यू ऑफ Duff Abraham carried out an extensive experiment, and on the basis of his experiment result, he proposed a relation between compressive strength of a concrete and a water cement ratio in 1919. ये जो मतलब अब्राहम लॉ जो है, अब्राहम जो एक आदमी था वो क्या किया कि हमको मतलब उसके अनुसार से अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो के अनुसार से अगर हम चलेंगे उतना स्ट्रेंथ आएगा, वो उसको लेके वो एम को लेके एक्सपेरिमेंट करते हुए 1999 में वाटर सीमेंट रेशियो से ही वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है उसको मतलब जज कर लिया। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अब्राहम वाटर सीमेंट लॉ, विच इज़ नोन एज वाटर सीमेंट रेशियो लॉ, विच इज़ रिप्रोड्यूस एज given below, that is FCK is equal to K1 by K2 the whole square x. That means whereas FCK is what, concrete cylinder, that is 15 into 30 centimeter, and strength for 28 days after proper curing. Then we will take K1 and K2 is constant,
and x is water cement ratio, that is, as you can say, k1 by k2 the whole square x. That means that k1 and k2 is constant and x is the water cement ratio as given. Then he suggested the empirical value for K1 is 984 and K2 is 7 in MKS unit, and Abraham water cement ratio law state that the strength of concrete is only dependent upon water cement ratio provided the mix is workable. जो ये अब्राहम्स वाटर सीमेंट लॉ है वो यही बताया कि जो भी स्ट्रेंथ कंक्रीट का है डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो के अनुसार से ही. सो आफ्टर दैट द फॉर्मूला became FCK is equal to 984 by 7 the whole square x. The compressive strength of concrete is the resistance of concrete to crushing. It decreases the increasing of water cement ratio. Lower the water cement ratio can be used when the concrete is vibrated to get a higher strength. When compressive higher water cement ratio is required, then hand compaction concrete. Thus, the water cement ratio is lower practical limit, and the strength of the concrete falls rapidly due to इंट्रोडक्शन ऑफ एयर वॉइड्स. जो हम वाइब्रेटर चलाते हैं तो उसमें हमको मतलब प्रॉपर कॉम्पैक्शन मिलता है तो उससे उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन वही अगर हम हाथ से अगर उसको कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत एयर वॉइड्स रहने के कारण उतना स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है. As you can see in this figure, the water cement ratio relating with the strength of the concrete. This figure shows, as you can see, the relation between the compressive strength of the cement and it shows the water cement ratio in a straight line, that is you can see here, and one is 0.8 and it is coming to 1 in the between. Then it is coming from suppose we can tell us if this is coming near here, then we can tell us 1:2, and this shows that water cement ratio from 0.8 to 2.8, and where the strength lies, as you can see in this image. Effect of different water cement ratio on strength. अगर हमको वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में जानना है तो अफेक्ट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है. फॉर एक्सपेरिमेंटल डेटा it has been founded that for no unhydrated cement to be left and no capillary porous to be left, there should be sufficient water in the mix. अगर हमको मतलब कोई वॉइड्स नहीं छोड़ना है तो हमको जो वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा उसमें एकदम प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स रहना चाहिए. द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर करस्पॉन्डिंग टू 0.38 water cement ratio to be weighted. Thus, the water cement ratio less than 0.38 complete hydration is not possible. जिस तरह से मतलब वाटर सीमेंट रेशियो एज़ पर IS कोड मेथड से निकला हुआ है कि 0.4 से 0.6 तक यूज़ कर सकते हैं. अगर 0.38 से अगर कम रहेगा तो उसका हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है. उसका मिलना मतलब जो पानी में वो पेस्ट फॉर्म होता है वो प्रॉपर नहीं पेस्ट होगा. एज यू कैन सी हियर in this image, before hydration and before hydration you can see here water cement ratio is 0.4, water cement ratio is 0.6, and water cement ratio is 0.2. For workability consideration, the water cement ratio is founded as 0.4. At the water cement ratio 0.4, mix has sufficient water for hydration as well as for providing easy in compaction. At this water cement ratio, gel formed with a good physical structure being dense. At a higher water cement ratio, gel forms very poor physical structure, probably more porous, result in a lower strength concrete at a different
इज सोन। ये जो है अगर हम नॉर्मल मतलब अगर जो रेशियो है 0.4 के अनुसार से अगर हम चलते हैं तो उसका जो वाटर सीमेंट रेशियो में जो मिक्स होगा तो उसका जेल प्रॉपर फॉर्म होगा और उसका मतलब स्ट्रेंथ भी मतलब वो डेंस रहेगा और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होगा। वैरस अगर हम ज़्यादा मतलब उसका अगर हम रेशियो के अनुसार से नहीं चलते हैं तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर पुअर होगा और उसमें बहुत मतलब वॉइड्स रहेगा। Next is water cement law is applicable under the following conditions, that is internal moisture condition of hydration of a cement should continue till the concrete gains full strength. Then concrete should be cured under a standard temperature. Size of concrete specimen should be same. Test should be done at the same age. That means that जो मॉइस्चर है वाटर सीमेंट रेशियो में अगर प्रॉपर अगर पानी हम मिक्स करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा और उसका स्ट्रेंथ पूरा गेन करने समय तक उसमें ही हाइड्रेशन का काम होना चाहिए, उसमें पानी का मात्रा रहना चाहिए और कंक्रीट शुड बी क्यूर्ड अंडर ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर। उसका मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में कंक्रीट को क्यूरिंग करना है और साइज़ ऑफ कंक्रीट स्पेसिमेंट शुड बी सेम। जो साइज़ रहता है कंक्रीट का स्पेसिमेंट का वो सेम रहना चाहिए और उसको क्यूरिंग प्रॉपर रहना चाहिए और उसके बाद टेस्ट करेंगे तो मतलब वाटर सीमेंट रेशियो के अनुसार से उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। The summary of this lecture is all about water cement ratio is expressed in the term of weight and to volume too. In terms of weight, the quantity of water to be used as per unit weight of cement is 1 kg is known as water cement ratio. If 50 grams of water is used per kg, then the per kg of cement and then the water cement ratio will be 0.5. Normally water cement ratio more than 1 is not used. In terms of volume, water used in a liter per bag of cement 50 kgs is taken as water cement ratio by volume. ये जो है हम वॉल्यूम में भी लेते हैं, केजी में भी लेते हैं और नॉर्मली वाटर सीमेंट रेशियो जो अभी शुरू से बताते आ रहे हैं जो हम 0.4 से 0.6 के अंडर में लेते हैं, 1 से नीचे रहेगा और 0.38 से ऊपर रहेगा वाटर सीमेंट रेशियो तो आपका बहुत बढ़िया रहेगा। रेफरेंस आई हैव used from MS Sethi concrete technology book and I have went through online source that is google.com and Ritu publication book. Thank you for listening my lecture. If you have any doubt you can free to message me and clear your doubt.